Chapter number 9, 9.4 Characteristic of Organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. In activity number 1, which listed object, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. Let us think of example from a forest like tree, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss. Maybe only some of the objects that are present in forest. Which of these are living? हमने एक्टिविटी नंबर में पढ़ा था कि कौन से जीव है फॉरेस्ट में जो मतलब कि लिविंग है और कौन से ऑब्जेक्ट्स है वो नॉन लिविंग है. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट and group them as living and non-living. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhythm from Complete Nonsense written by Edward Lear. So, हमें ये जानना है कि कौन से लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है ऑब्जेक्ट्स. हमें ये जानने में बहुत आसानी होगी, जैसे कि चेयर और टेबल वो लिविंग नहीं है और पहेली एक रिदम पढ़ रही है, वो चलो देखते हैं. Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblain on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air. Said the table to the chair, said the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk when you know we cannot walk. Said the table with a sick. I can do harm to try. I have a many legs as you. Why can't we walk on two? Paheli and Buzo found the poem very funny because they know that a chair or table is not alive and it cannot talk or walk. पहली और बुजो को ये पोएम बहुत ही फनी लगी. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि चेयर और टेबल चल नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते. चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव. कुर्सी, टेबल, स्टोन, कॉइन ये जीव नहीं है. सिमिलरली वी डू नो that we are alive and so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life. Dog, cats, monkeys, squirrels, insect and many others. हम जानते हैं कि हम खुद और कई सारे animals जो living है. How do we know that something is living? Often it is not so easy to decide. ये जानना बहुत ही मुश्किल है. We are told that plants are living, but they do not move like dog or a pigeon. हमें पता है हम प्लांट को लिविंग में गिनते हैं, पर हमें ये भी पता है कि वो चल नहीं सकता. On the other hand, a car or bus can move. और बस और कार तो चल सकती है. Still, we consider them as non-living. Plant and animals appear to grow in size with time. बस और कार चल सकती है फिर भी हम उनको लिविंग नहीं बोलते. और प्लांट और एनिमल्स सो धीरे धीरे ग्रो होते हैं उनकी साइज में टाइम टू टाइम. बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज. पर हम ये भी जानते हैं कि बादल जो टाइम टू टाइम बड़े होते हैं साइज में. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब क्लाउड्स लिविंग है? No. So how does one distinguish between living and non-living things? So ये तो नहीं पॉसिबल है. तो फिर लिविंग और नॉन लिविंग कैसे हमें पता चलेगा? Do not living things have some common characteristic that make them very different from the non-living? You are a wonderful example of living being. What characteristic do you have which make you different from non-living things? आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं
कि जो आपको निर्जीव वस्तु से अलग करते हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। वो हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। जो लक्षण आप अन्य एनिमल्स और पौधों में भी पाते हैं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर perhaps common to all living things। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो सभी जीव में कॉमन होंगे। Do all organisms need food? In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food. हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था कि कैसे हम सभी को मतलब कि फूड की कितना आवश्यक होता है। हमने यह भी पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो खुद अपना फूड बनाता है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम ग्रो। फूड ही है जो हमें और प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करती है और ज़रूरी है। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फ्रॉम अदर प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। हमें फूड की बहुत ही ज़रूरत होती है ग्रो होने में, इसीलिए हमें फूड लेना ज़रूरी है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स सो ग्रोथ? डज द कुर्ता यू हैड 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? आपका एक कुर्ता है वो अभी भी आपको आता है? 4 साल पुराना कि अभी भी नहीं आता, आप पहन सकते उसे या नहीं पहन सकते? नहीं पहन सकते ना। ऐसा क्यों? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। आप सभी बढ़ रहे हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। हमारी साइज, ऊंचाई, लंबाई बढ़ती है टाइम टू टाइम और हम कुछ साल बाद हम एडल्ट हो जाते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रोन इनटू एडल्ट्स। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड pups grow into adults. A chick hatches from an egg grown into a hen or a cock. आपने चिकन के बच्चे को ग्रो होते देखा होगा। वो धीरे धीरे ग्रो होता है, बाद में वो कॉक और हैन में परिवर्तित होता है। यहाँ पे फिगर दी हुई है, आप देख सकते हो। Plants are grown. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stage of growth. Look at the plant after a few days and a week. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think non-living things show growth? प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। आप थोड़े थोड़े समय पे प्लांट्स को नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और धीरे धीरे वो ग्रो हो रहे हैं। उनकी लंबाई में, उनकी ऊंचाई में, साइज में वो ग्रो कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि निर्जीव वस्तु जो है नॉन लिविंग, वो भी क्या ऐसे ही दिखती है, ग्रो होती है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? Can we live without breathing? क्या हम सांस लिए बिना जी सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside the inside of our body. हम जब सांस लेते हैं तब एयर हमारे अंदर जाती है और हम जब सांस को छोड़ते हैं तब वो बाहर जाती है एयर। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is part of a process called respiration. इस breathing system को क्या बोलते हैं? Respiration. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body.
We breathe out carbon dioxide produced in this process. हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस छोड़ते समय बाहर निकलती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन. ये सभी एनिमल्स भी सेम हमारी तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम होती है उनकी भी. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट and notice the movement of their abdomens. This movement indicates that they are breathing. जब वो आराम करते हैं तब हमें नोटिस करना चाहिए, इजीली हमको वो पता चलेगा कि वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. अब हमें पता चलता है कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और रेस्पिरेशन और फूड हमारी बॉडी को मतलब कि शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं. सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. Fish, we have learned, have gills from using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो गैस एक्सचेंज उनमें अलग प्रकार की होती है, जैसे कि अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं. फिश वो गिल्स से ऑक्सीजन डिसॉल्व करती है वाटर में, फिर वो ब्रीथ करती है. डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? Exchange of gases in plant mainly takes place through leaves. The leaves take in air through teeny pores in them and use the oxygen they give out carbon dioxide to the air. Plants भी respiration करते हैं. वो किस तरह से करेंगे? वो ऑक्सीजन को हमें देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे. पर ये प्रोसेस किसके द्वारा होगी? वो उनमें लीव्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट. वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट है वो सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन द प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट. पौधे फूड उनका सिर्फ दिन में ही बनाते हैं और रेस्पिरेशन वो दिन और रात दोनों में करते हैं. डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न व्हाइल वॉकिंग barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the charged bright. आप जब सडनली शार्प थॉर्न पे पैर रखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? अब आपका फेवरेट फूड आपके सामने हो तो आप कैसा फील करते हैं? आप अचानक ही आप पे सनलाइट पड़े तो आपकी आंखें कैसे बंद हो जाती है? Surroundings, your favorite food, bright light and a thorn. In the above situations are some example of changes in your surroundings. All of us respond immediately to such change. Change in our surrounding that make us respond to them are called stimuli. हम ये सभी प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं. कुछ चेंज होता है, हम कुछ ना कुछ करते हैं. जब हमारा पैर कांटों पे पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट आती है मुंह पे तो आँख हमारी बंद हो जाती है. तो इस परिवर्तन को अचानक होने वाली क्रिया को स्टिम्युली कहते हैं. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली?
observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move toward a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroaches begin to move their hiding place if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more example of response of animals to stimuli? क्या दूसरे एनिमल्स है वो भी इस तरह बिहेवियर करते हैं? सडनली हम कॉकरोच किचन में रात में होता है, हमारी स्विच ऑन लाइट हुई कि तुरंत ही वो भाग जाता है. बर्ड्स की ओर हम बढ़ते हैं आगे तो वो कैसा रिएक्ट करता है? कोई एनिमल है जो फूड को देख के कैसा बिहेव करता है? डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. In some plants like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves are closed or fold when someone touches them. These are some examples of response of plant toward change in their surrounding. क्या plants में भी स्टिम्युली होती है? वो कैसे रिएक्ट करते हैं? कुछ फ्लावर्स है सिर्फ नाइट में होते हैं और कुछ फ्लावर्स सनसेट के टाइम पे क्या करते हैं? बंद हो जाते हैं. एक प्लांट है माइमोसा, उसका नाम है टच मी नॉट. उसे जैसे ही आप टच करोगे वैसे वो अचानक मुरझा जाएगी. Okay. Activity number 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plant out in the open? Not the direction in which it bent. हमारे घर में एक पॉटेड प्लांट को सनलाइट डायरेक्ट आती हो वैसे प्लेस पे रखना है और हमें कुछ दिनों तक कंटिन्यूस उसमें पानी डालना है. अब हमें ये देखना है कि प्लांट सिर्फ ऊपर की ओर ग्रो करता है. इफ इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिम्युलस? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम. आप प्लांट्स को देखिए और वो कौन सी तरफ मुड़ता है वो देखिए. अब आपको पता चलेगा कि सभी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it utilized by the body. What happened to the rest? This has to be removed from the body as wastage. Our body produces some wastage in other life processed. Also, the process of getting rid of wastage by organisms is known as excretion. हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है और हम जो भी फूड खाते हैं वो सभी हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती. फूड खा के कुछ शरीर में ऐसे वेस्टेज होते हैं वो बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है और वो कुछ वेस्टेज है वो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन. डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रेट? They do, but not as seen in animals. The mechanism in plant are little different. Some plants find it possible to store the waste product within their part in a way that they do not harm the plants as a whole. Some plants remove waste products as secretions. क्या प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं? प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं पर वो एनिमल्स से थोड़ा अलग प्रकार है. प्लांट सेक्रेशन के थ्रू वो एक्सक्रेट करते हैं. एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है, वो लिविंग सजीव का एक दूसरा कैरेक्टर है, सामान्य कॉमन वाला. डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड? Have you ever seen nest of some birds like pigeons? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the egg hatch and young bird come out them.
फिगर नंबर 9.30 न आपने बर्ड्स के नेस्ट को देखा है। उसके नेस्ट में छोटे छोटे अंडे होते हैं और वो अंडे कुछ दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। देखिए फिगर नंबर 9.13 में एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड। The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through egg. Some animals give birth to young ones. सभी एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है उनका। अब सभी एनिमल्स रिप्रोड्यूस अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ अंडे रखते हैं, उनमें से बच्चे होते हैं, और कुछ डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करते हैं। Plants also reproduce. Like animals, plants are also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं और वो अलग अलग तरह से, जैसे कि सीड से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड विच कैन जर्मिनेटेड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। प्लांट है वो सीड में से धीरे धीरे ग्रो होता है, जर्मिनेट होता है और प्लांट ग्रो होता है उनसे से। फिगर नंबर 9.15 में देखिए आप। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट other than seeds. For example, a part of potato which a bud grow into new plant. Some plants है वो डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पार्ट से, बॉडी के। अब वो कौन सा पार्ट है? पोटैटो में बर्ड है, उनमें से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। 9.16 ग्रो होता है न्यू प्लांट। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? कुछ प्लांट कटिंग से भी उगाए जाते हैं। क्या आप इसे ट्राई करके देखेंगे? यस, इजी है। एक्टिविटी नंबर 5। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और मेहंदी प्लांट। फिक्स इट इन सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? आपको एक मेहंदी और रोज का प्लांट कटा हुआ लेना है, कटिंग लेना है, और उसको जमीन में आपको लगाना है और कंटिन्यूस उसको पानी देना है। अब आप कुछ दिन बाद उसको नोटिस कीजिए। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। टॉक टू gardener if possible on the care to be given to cutting to make them grow into plants. इस तरह प्लांट ग्रो करना इजी नहीं है। आप गार्डनर से पूछिए और सही तरीके से ये प्रोसेस कीजिए तो श्योर आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. सभी जीव है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। Do all organisms move? In chapter 8, we discuss the various ways which animals move. They move from one place to another and also show our body movements. हमने एनिमल्स के बारे में चैप्टर 8 में देखा था कि वो कैसे मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली anchored in soil so they do not move from one place to another. क्या प्लांट भी मूव कर सकते हैं? क्या सच में? नहीं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, वो जमीन में जकड़े हुए होते हैं। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? प्लांट्स में अलग अलग सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते हैं, और फ्लावर्स का खुलना बंद होना वो भी मूवमेंट ही है।
We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, a small piece of paper, could, and soon. Is there something different in this moment from the moment of living beings? हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी मूवमेंट करके देख सकते हैं, पर ये जीवित और जो जीवित नहीं है वो कैसे भिन्न कैसे कर सकते हैं हम? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristic as we have discussed. Yet another common characteristic is that living being die. Because organism die, particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. कई सारे जीव हैं, वो सभी अलग अलग है, पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे कि जो जीव है वो सभी के मृत्यु होता है और सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, और अभी रिप्रोडक्शन के बाद सभी नए बच्चे उनके होते हैं, और अकेला जीव भी प्रजनन किए बिना, रिप्रोडक्शन किए बिना मर सकता है, पर जो जीव है उनकी प्रजाति तभी अस्तित्व में रहेगी जब वो सदस्य रिप्रोडक्शन करेंगे. We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, so movement, grow and die. हमने सभी लिविंग थिंग्स देखे, अब उनके कॉमन कैरेक्टर्स भी हमने देखे. डू विल फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक. कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव. द मून मूव्स in the sky. A cloud grow in size right in front of our eyes. Can such thing be called living? We also ourselves. Do these objects also show all the other characteristics of living things? हमने कई सारे नॉन लिविंग थिंग्स देखी, वो भी ऐसे ही कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारे और उनके मिल सकते हैं, पर आपने एक क्वेश्चन सोचा, एक क्वेश्चन किया अपने आप से कि क्या उनमें और हम में सभी कैरेक्टर सेम हैं? इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we also always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है जो हम सभी में, नॉन लिविंग और लिविंग में सेम है, पर सभी कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है जो हम लिविंग और नॉन लिविंग में एक रूप से हम सरखा सके. टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, लेट अस लुक at specific examples. Consider any seed, say moong. It is living. It can stay in shop from months and not show any growth or some of the other characteristic of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it and turns into wall plant. Did the seed need food, did the excrete, growth or reproduce when it was the shop for many months? हमने दुकान में मूंग के सीड को देखा होगा, वो कैसे डिब्बे में पड़े हैं, तब कोई भी प्रोसेस नहीं हो, पर हम वो सीड सॉइल में रखेंगे, मतलब कि हम सॉइल में उसको बो देंगे तो वो कैसे एक पौधा बन जाएगा, वो सभी प्रोसेस करेगा. Am I right? We see that they can case when we cannot easily say that things has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं वो हम सही तरीके से नहीं कह सकते कि ये लिविंग ही है और नॉन लिविंग ही है. Then
What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seed respire and in the process give out some heat. We see that respiration is process that take place in seed even when some of the other life process may not be very active. It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all diversity of living being around us, we can conclude that life is beautiful. गेहूं की बोरी में हमने अपना हाथ डाला तो हमें गर्मी का महसूस होती है. गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी होती है. इवन उसमें उसके बीच में रेस्पिरेशन होती है. बल्कि ये भी सच है कि सभी प्रोसेस उसमें नहीं होती. हमने ये सभी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा तो लास्ट में हमें यही पता चलता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल. थैंक यू.